Very good morning, students. Welcome to this session of economics. Today we are going to continue with our third chapter of macroeconomics, that is national income and related aggregates. But before proceeding further, just have a quick look on the syllabus for PT1, that is first chapter of macroeconomics introduction and first chapter of Indian economic development, that is Indian economy on the eve of independence. So these are the two chapters that you need to cover for your PT1. Okay, so it would be an MCQ based question paper, so you need to know the in and out of both these chapters. Okay, coming to the today's topic, today we are going to continue with the third chapter of macroeconomics, that is national income and related aggregates. If you remember, in our previous class we had started with the concept of national income, where we had a discussion about the factor incomes and the resident of a normal resident of a country. We studied about the examples of normal residents and non-residents of India, which made it very clear to us that who exactly are considered as the normal resident of any country. Okay, so today in the continuation of that topic, we are going to start with domestic and national concepts of income. Now, what are these domestic and national concepts of income? As it is common to understand, we have already understood that in the national income or any kind of income consists of four components, that is compensation of employees, rent, interest and profit. Okay, but there is a difference. जब भी हम मैक्रो लेवल पे इनकम के बारे में बात करते हैं, वो डोमेस्टिक और नेशनल कॉन्सेप्ट दोनों में काउंट होती है. ठीक है, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में उसे डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है और नेशनल कॉन्सेप्ट में उसे नेशनल इनकम कहा जाता है. ठीक है, दोनों डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की 4 बेसिक एलिमेंट्स है जो हमने अपनी पिछली क्लास में कवर किए थे. डोमेस्टिक इनकम जो है इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में जनरेट की जाती है, नो मैटर हु जनरेटेड, बी इट अ नॉर्मल रेजिडेंट और अ नॉन रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री. ओके, तो अगर वी टॉक अबाउट द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, तो इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री में जितने भी लोग हैं, ईदर दे आर रेजिडेंट ऑफ दैट इंडिया और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बट इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में जो जो काम हो रहा है और जो जो इनकम जनरेट हो रही है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, मैं फिर से मेंशन कर देती हूँ, इट हैज़ टू बी जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. जो जियोग्राफिकल टेरिटरी होती है, इट हैज़ टू बी जनरेटेड इन दैट, and it doesn't matter that whether it is being generated by a normal resident or by a non-resident of that country. Okay, this is the domestic income. Second is national income. It is also the sum total of all the factor incomes, compensation of employee, rent, interest and profit, जो कि earn किया जाता है by normal resident of a country. ठीक है, you have to be a normal resident whether you are staying in that country or you are staying outside that country. Now there is a huge difference between these two concepts. दोनों में हम फैक्टर इनकम्स को ऐड कर रहे हैं. ठीक है, कॉम्पनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बट यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस किया गया है. दे आर फोकसिंग ऑन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री. इट डजेंट मैटर टू देम कि वेदर द इन दैट कंट्री द पीपल हु आर जनरेटिंग दोज इनकम आर नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट. ठीक है, और नेशनल इनकम पे फोकस किया जा रहा है नॉर्मल रेजिडेंट्स पे. ठीक है, तो आप इंडिया में रह के काम कर रहे हैं या आप यूएसए में रह के काम कर रहे हैं, बट अगर आप इस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट हैं, सपोज आई एम अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, बट मुझे 2 महीने के लिए किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए यूएसए जाना पड़ गया. ठीक है, तो 2 महीने जो मैंने यूएसए में रह के काम किया और जो इनकम मैंने वहाँ जनरेट की, वो फिर भी मेरी नेशनल इनकम में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि मैं आई एम द नॉर्मल रेजिडेंट. मेरी रेजिडेंसी जो है वो चेंज नहीं हुई, मैंने सिर्फ 2 महीने के लिए अपनी टेरिटरी चेंज करी थी. मैं पहले इंडिया में काम कर रही थी. ठीक है, बट 2 महीने के लिए मुझे बाहर एक प्रोजेक्ट मिला, मैंने वहाँ जाकर काम किया और जो मनी मैंने वहाँ जनरेट किया वो भी मेरी नेशनल इनकम में काउंट होगा, बिकॉज आई एम अ नॉर्मल रेजिडेंट. तो डोमेस्टिक इनकम फोकसेस ऑन द टेरिटरी and national income focuses on the residentship of the residents. Okay, so it is important to understand the concept of domestic territory of the country. ठीक है, हमें normal residents तो पता चल गया था, हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था. अब हम पढ़ते हैं about the domestic territory of the country. domestic territory में क्या क्या इंक्लूड होगा? सबसे पहले जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री. ठीक है, बट
it should be excluded with foreign embassies and international institution located within the geographical territory. मतलब इंडिया में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी ऑफिसेज है, जितनी भी फैक्ट्रीज है, प्लांट्स हैं जहाँ काम कर रहे हैं, वो सब के सब डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे. पर जो फॉरेन एम्बेसीज हैं जो इंडिया में लोकेटेड हैं, जैसे यूएस एम्बेसी हो गई, यूके एम्बेसी हो गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ऑफिस हो गया, WHO ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस हो गया, जितनी भी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर इन आवर टेरिटरी बट दे बिलोंग टू फॉरेन. ठीक है, इसलिए हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे. वी एक्सक्लूड दी एम्बेसीज एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, और हम किसको इंक्लूड करेंगे? हम इंडियन एम्बेसीज को इंक्लूड करेंगे, अपनी कंट्री की एम्बेसीज को इंक्लूड करेंगे जो बाहर की जियोग्राफिकल टेरिटरी में सिचुएटेड है. ठीक है, तो अगर इंडियन एम्बेसी जो यूएसए में ऑपरेट कर रही है या इंडियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, हर कंट्री के एम्बेसीज जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, क्योंकि एम्बेसीज का जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है वीज़ा अप्रूवल. ठीक है, तो अगर यूएसए से जो लोग इंडिया आते हैं वो पहले वहाँ की इंडियन एम्बेसी में वहाँ वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, उनका वीज़ा अप्रूव होता है, तभी जाके वो इंडिया में आ पाते हैं. ठीक है, तो हर इकोनॉमी की एम्बेसीज होती हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही होती है, जिससे टूरिज़्म जो है सपोर्ट किया जा सके. तो हमारी कंट्री में जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी, बट हमारी एम्बेसीज जो फॉरेन कंट्रीज़ में लोकेटेड हैं वो जो है डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी. ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम जो होता है, व्हाट इज इट? इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्लस नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड. मतलब कि हमने जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में, हमारी टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं, उसके अलावा जो बाहर से हमारी फैक्टर इनकम अब्रॉड से आई है, जो वहाँ के सिटीजन्स ने भेजी है, दैट कम्स अंडर दी डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसे अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. देर आर लॉट ऑफ एग्रीगेट्स, लॉट ऑफ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग दी डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, नेशनल इनकम इज़ नॉट द सम ऑफ टोटल ऑफ पर्सनल इनकम. यहाँ पर ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि जो नेशनल इनकम है इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द टोटल ऑफ पर्सनल इनकम. ठीक है, जितनी भी हम पर्सनल इनकम इंक्लूड करते हैं या जो अर्न करते हैं वो सारी की सारी जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती. देर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस. ओके, सो दिस इज़ अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम. अगर आपको याद हो, इस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. तो इस चैप्टर में हम जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे, बट नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए हमें हमारी डोमेस्टिक इनकम का पता होना बहुत ज़रूरी है. तो कैसे हम अपनी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं, क्या ऐड करते हैं, क्या माइनस करते हैं, लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रीड ऑन दैट. सो बेसिकली डोमेस्टिक इनकम जो है, मैंने अभी आपको जो बताया, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम विच इज़ जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि जितनी भी फैक्टर इनकम्स जो हैं जब जनरेट होती है एक टेरिटरी के अंदर, एक इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डोमेस्टिक इनकम. ठीक है, अब इसके अंदर फैक्टर इनकम जो है इट इज़ इंक्लूडेड ऑफ बोथ रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं हमारे टेरिटरी पे. हमारी टेरिटरी के अंदर जो रेजिडेंट्स रह रहे हैं और जो नॉन रेजिडेंट्स रह रहे हैं, वो जो भी अर्न करते हैं वो सब का सब जो है वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड हो जाएगा. पर हमारी डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड नहीं होगा? वो फैक्टर इनकम जो नॉन रेजिडेंट्स रह रहे हैं, जो डोमेस्टिक इनकम में बेसिकली इंक्लूड नहीं होगा. फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉन रेजिडेंट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, and our domestic income does not include the factor income earned by our residents from the domestic territories of other countries. Okay, so these points need to be focused कि domestic income में, डोमेस्टिक टेरिटरी में वो लोग आते हैं जो कि बेसिकली हमारी इकोनॉमी में काम कर रहे हैं. ठीक है, एंड basically we focus on the category that domestic income basically include करता है factor income that is being earned by the residents within the domestic territory of our country.
ठीक है, जितने भी रेजिडेंट्स हैं जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं, जैसे हम सब लोग जो हैं हम अपनी टेरिटरी में ही रह रहे हैं एंड वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, तो हमारी जितनी भी फैक्टर इनकम है वो सारी की सारी जो है वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी। बट हमारी डोमेस्टिक इनकम में क्या नहीं इंक्लूड होगा, द फैक्टर इनकम विच इज़ अर्न बाय आर रेजिडेंट्स फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द अदर कंट्रीज़। मतलब यहाँ पे रहते हुए जो हमारे रेजिडेंट्स यहाँ अर्न कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, बट हम नहीं इंक्लूड करेंगे जो हमारे ही रेजिडेंट्स बाहर की कंट्रीज़ में जाके वट एवर दे आर अर्निंग दैट वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम। ओके, सो इट इज़ वेरी क्लियर, डोमेस्टिक इनकम जो है वो सिर्फ टेरिटरी पे फोकस करता है। यू शुड बी वर्किंग इन योर टेरिटरी, तभी जाके आपकी जो है वो डोमेस्टिक इनकम ऐड होगी, ठीक है। तो ईदर यू आर अ नॉन रेजिडेंट, इट डजेंट मैटर, बट इफ़ यू आर वर्किंग इन आर टेरिटरी योर income will be included in the domestic income. And either if you are a resident but you are working in the domestic territory of some other country, your income will not be included in the domestic income of दैट पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम को हम नेशनल इनकम में कब इंक्लूड करते हैं? डोमेस्टिक इनकम बिकम नेशनल इनकम जब हम एक्सक्लूड कर देते हैं डोमेस्टिक इनकम से द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच बिलोंग्स टू द नॉन रेजिडेंट्स विद इन आर डोमेस्टिक कंट्री। अब नेशनल इनकम फोकस करता है रेजिडेंटशिप पे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो डोमेस्टिक इनकम हमने कलेक्ट करी थी, हमारी टेरिटरी में जनरेट होने वाली जितनी भी इनकम थी, बी इट ऑफ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, वो हमारे पास एक टोटल फिगर आ गई है। अब उस टोटल फिगर में से हम एक्सक्लूड कर देंगे अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम जो कि नॉन रेजिडेंट्स हमारी इकोनॉमी में रह रहे हैं। सबसे पहले तो हम उनकी इनकम को एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि अब हम सिर्फ नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द टेरिटरी, वी आर फोकसिंग ऑन द रेजिडेंटशिप, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉन रेजिडेंट्स जो हमारी टेरिटरी में रह रहे हैं, जो यूएस यूके या जो बाहर की कंट्रीज़ के लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को हम अब एक्सक्लूड कर देंगे और साथ ही हम ऐड कर देंगे डोमेस्टिक इनकम वी विल ऐड दी फैक्टर इनकम जो हमारे रेजिडेंट्स जो हैं बाहर की कंट्रीज़ में रह के द वन दे आर अर्निंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, फ्रॉम द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ अदर कंट्रीज़, वो इनकम जो है अब इंक्लूड की जाएगी इन दी नेशनल इनकम। सो दिस इज़ थियोरेटिकली, वी विल लर्न इट बाय फॉर्मूला। तो आप देखिए हमारी डोमेस्टिक इनकम आ गई, जितनी भी इनकम हमारी टेरिटरी में जो है अर्न की गई फ्रॉम द रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स, वो सारी की सारी इनकम जो है हमने जब उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो हमारे रेजिडेंट्स बाहर की टेरिटरीज में या बाहर की कंट्रीज़ में अर्न कर रहे हैं, उसको हमने ऐड कर दिया इन द नेशनल इनकम। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? फैक्टर इनकम अर्नड बाय आर रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे यहाँ के इंडियंस जो बाहर की इकोनॉमी में जाके रह रहे हैं उनकी इनकम, ठीक है, उसमें से जब हम माइनस कर देंगे वो इनकम जो हमारी ही कंट्री में रहने वाले नॉन रेजिडेंट्स जो हैं वो अर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, आप एक बार अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और जब हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी न्यू एंड अ फ्रेश कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू, इसलिए हो सकता है कि आपको इनिशियली थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो बिकॉज बहुत सारे एग्रीगेट्स एक साथ आपको पढ़ने पड़ रहे हैं। तो वील मेक इट क्लियर अगेन। डोमेस्टिक इनकम में बेसिकली वो सारी इनकम आती है जो हमारी टेरिटरी में रहने वाले लोग, ईदर दे आर रेजिडेंट ऑफ आर कंट्री और नॉन रेजिडेंट ऑफ आर कंट्री, वो इंक्लूडेड होती है, ठीक है। उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं, तब जाके हमें हमारी नेशनल इनकम मिलती है। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? वो इनकम, वो फैक्टर इनकम जो हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न करी है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हमारे रेजिडेंट्स जो हमारे इंडियंस जो हैं जो बाहर की कंट्री में रह रहे हैं या जो बाहर किसी प्रोजेक्ट के लिए गए हुए हैं, ठीक है, बट दे आर करंटली दे आर द रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, उनकी रेजिडेंसशिप जो है वो चेंज नहीं हुई। वो अगर बाहर जाके, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए बाहर जाके अगर पैसा कमाती हूँ तो वो पैसा जो है वो मेरी इनकम में, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। We will subtract the factor income earned by the non-residents in our domestic territory। हमारी टेरिटरी में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो यूएसए एंड यूके के लोग, जो बाहर के फॉरेनर्स हमारी टेरिटरी में रह रहे हैं, उनकी इनकम को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास डोमेस्टिक इनकम से हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी नोइंग हाउ टू कैलकुलेट दिस फैक्टर, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कन्वर्टिंग द डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। तो यहाँ पे सिंपल इन्होंने कर दिया, अब जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ आ जाएगा तो हमारी डोमेस्टिक इनकम हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है।
So this is the mathematical formula of calculating the domestic income and national income. Now in details इसके aggregates क्या होते हैं, we shall be continuing it with the upcoming classes. As of now, that is all for today. Thank you so much.